Hello friends, I would like to invite everyone to the digital celebration of Republic Day 2021. At the very outset, I wish you a very happy and fabulous Republic Day 2021. This year, the Republic Day celebration is restrained due to COVID-19. The entire world confronts this deadly virus, and it has disrupted all our activities and has taken a huge toll. People all over the world face this great challenge, and all the programs and projects have come to an impasse. But we the Carmelites march forward with hope and courage to face this challenging time. The celebration of this great day remind all of us our duties and responsibilities as citizens of this great nation. On this occasion, our students have prepared very colorful and thrilling programs to enlighten all its citizens with the great values of our Indian Constitution. I highly appreciate and congratulate all of our students who have generously contributed to this digital show. I also sincerely thank all the teachers who have motivated and guided the students for various items. Once again, I wish you very joyful and happy Republic Day 2021. Thank you. God bless. Jai Hind. राष्ट्र एकता की गूंज से जाग उठी झंकार, विश्व पटल पर भारत की होगी जय जयकार, होगी जय जयकार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तब से ही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। जन जन में रची बसी बस यह एक ही आवाज, चाहे कोई धर्म, संप्रदाय या जाति के लोग हो, सबके लिए समान अधिकार, समान व्यवहार तथा समान दृष्टि है। सन 2020 में इतनी बड़ी महामारी के संकट काल में भी इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश ने यह प्रमाणित कर दिखाया है कि हम सब एक हैं और एकता हमारी ताकत है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर सलाम देश के उन योद्धाओं को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया तथा अपना कर्तव्य निभाया। तो आइए हम उन पर जरा गौर फरमाते हैं। जिंदगी कर दी है हमने वतन तेरे नाम, देश है अब हमारी पहचान, झुक कर करते हैं तुझे सलाम। कायम रहेगी भारत माँ की आन बान और शान, क्यों ना करना पड़े हमें रक्त का कण कण कुर्बान। चाहे घोर मुसीबत आए, चहूं और संकट गहराए, हम उससे ना घबराएंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे, हम उससे भी लड़ जाएंगे, अन्न का दाना जन जन तक पहुंचाएंगे। जान है तो जहान है, इससे ना कोई अनजान है, हम करते हैं नित रोगी की सेवा, यही है जीवन का सच्चा सुख और मेवा।
सबको पता है जीवन की डोर ईश्वर के हाथ। निभाएंगे अपना कर्तव्य और देते रहेंगे साथ। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, मिलजुल कर हम करें सफाई, इसी में है सबकी भलाई। स्वच्छ रखो सुंदर रखो भारत देश विशाल, आओ बनाए साथियों भारत को खुशहाल। करो जतन हो जाए यह सारा जग हैरान, इस तरह हो स्वच्छता चमके हिंदुस्तान, चमके हिंदुस्तान। विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई बाधा न आई, गुरुजनों ने अविरल ज्ञान गंगा उन तक पहुंचाई। अपने शिष्यों को राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर चलना सिखलाएंगे। भारत को जगत गुरु बनाएंगे, शिक्षक है ज्ञान के सागर, सब में बांटे ज्ञान बराबर। सहयोग संगठन शक्ति जब होती है एक साथ, तब हर मुश्किल होगी ही दूर। तू मन में रख विश्वास, मन में रख विश्वास। जब दिल में हो जीतने की जिद और जज्बा, तब ना वजह ना बाधा, केवल होगा हमारा रुतबा। भारत की पावन धरती से उठा धूल में तिलक लगाऊं, ऐसा प्यारा देश है मेरा, नित नित महिमा गाऊं, मैं नित नित महिमा गाऊं। जय हिंद, जय भारत। I would like to wish you a very happy good morning to our principal sister Pavitra, my beloved teachers and supportive students. Here we are to celebrate the 72nd Republic Day of our nation. Though our country got independence on 15 August 1947, it took some time for our nation constitution came into effect. Our constitution came into full power from 26 January 1950. From then we start this tradition of celebrating 26 January as Republic Day, which is the national day. I am proud to be a citizen of free India, which ensures the fundamental right to every Indian, such as right to equality, right to freedom, right to speech, right to education, right to religion, etc. On this auspicious day, let us remember those legends that sacrificed their lives for our well-being. I would like to end this speech followed by a moment of silence for those great souls. Thank you for giving me this great opportunity. This is Priyanshi Mali from class 3rd A. Thank you. सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। झर झर नदियाँ सर सर चलती पवन शुभ तेरे मौसम वन्दे मातरम्। जंगल जंगल डाली डाली चांदनी पर से सपनों वाली, तेरे चरणों का चुंबन ले हम, शीतल मुस्कान तेरा करम वन्दे मातरम वन्दे मातरम।
शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। सुफलां सुफलां मलयजशीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दन, ये हमारा नमन है वतन के लिए। आज हम सभी 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। महान क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, परंतु उसे पूर्ण स्वतंत्रता 26 जनवरी 1950 को मिली, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने नेता को चुनने का अधिकार। इसलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है, जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया है। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। देश के प्रति इनके समर्पण को हम कभी नहीं भूल सकते। अंत में सम्मा है वतन की लौ पर जग कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। जय हिंद, जय भारत। बूंदों से बनता सागर, फसलों की धानी चादर, देखा है हमने सब यहाँ। ओ पर्वत की चोटी चढ़ना, मेहनत से आगे बढ़ना, सीखा है हमने सब यहाँ। सोने की चिड़िया हो या मिट्टी का घरौंदा, सपनों का अपना है जहाँ। ये देश है वीरों का, ये देश है वीरों का, देश की हर गाथा है महान। हर लफ्ज़ ये कहता है, हर आँख में रहता है, हर सांस में रहता है हिंदुस्तान। गरजा 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 अपनी हंसी दे देंगे, सारी खुशी दे देंगे, तेरी खुशी के लिए, तेरी खुशी के लिए। देनी पड़े अगर तो ये जिंदगी भी लेंगे, अपनी जमीन के लिए, अपनी जमीन के लिए। करते हैं प्यार बेशुमार से हम, तेरा जुनू है चढ़ा। ये देश है वीरों का, ये देश है वीरों का, इस देश की हर गाथा है महान। हर शख्स के सीने में बस नाम ये रहता है, इस नाम को कहते हैं हिंदुस्तान, इस नाम को कहते हैं हिंदुस्तान, इस नाम को कहते हैं हिंदुस्तान। भारती, भारती, चलो छत पे झंडा फहराने चलते हैं। अरे क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज तो इतना शुभ दिन है, 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है। हाँ माँ, आज इतना शुभ दिन है, हमारा गणतंत्र दिवस है, लेकिन हम इसे हर बार की तरह खुशियों से नहीं मना रहे हैं, और मैंने इसे कभी अकेले मनाया भी नहीं है।
नहीं भारती, ऐसा नहीं है। हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। अरे भारती, कोविड-19 के कारण यदि तुम गणतंत्र दिवस स्कूल जाकर नहीं मना पा रही तो क्या हुआ? मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें गणतंत्र दिवस उतने ही उत्साह से मनाने में मदद करेंगे। भारती, क्या तुम जानती हो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आओ, आज हम तुम्हें आधुनिक भारत की एक झांकी दिखाते हैं। सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Republic Day has been celebrated every year in India on 26 January since 1950 to honor the date on which the Constitution of India came into effect. India is celebrating its 71st Republic year. The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950 with a democratic government system, completing the country's transition towards becoming an independent republic. 26 January was chosen as the date for Republic Day because it was on this day in 1929 when the Declaration of Indian Independence, Purna Swaraj, was proclaimed by the Indian National Congress, as opposed to the dominant status offered by the British rule. It was on January 24, 1950, the Assembly members signed 210 copies of the Constitution, one in English and one in Hindi. And 2 days later, history was made. On that day began Dr. Rajendra Prasad's first term of office as President of the Indian Union. The Constituent Assembly became the Parliament of India under the transitional provisions of the new Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. जानती हो भारती, भारत का आज जो लोकतांत्रिक स्वरूप है उसका पूर्ण श्रेय भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। अच्छा पिताजी।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारती, क्या तुम जानती हो हमारा देश चारों दिशाओं से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। हाँ, जैसे देखो हमारे पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर हमारे देश की शान है। वर्तमान में इन राज्यों में जैविक खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास और परंपरागत कृषि विकास योजना के द्वारा रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। हमारे देश का हर कोना महत्वपूर्ण है, जैसे दक्षिण भारत। भारतीय विज्ञान की परंपरा ईसा से 3000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। प्राचीन काल में चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, नागार्जुन की खोजें जहां महत्वपूर्ण थीं, वहीं आधुनिक वैज्ञानिकों जैसे सीवी रमन, जगदीश चंद्र बासु, मेघनाथ साहा, श्रीनिवास रामानुजन के प्रयासों को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने भारत को विश्व में पहचान दिलाई। अत्याधुनिक भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम का तो विश्व भी लोहा मानता है। हमारे देश का श्री हरिकोटा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसने हमें मंगलयान, चंद्रयान जैसे मिशनों के माध्यम से हमें विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। वर्तमान में तो कोटेसैट 3 ने तो विश्व में भारत का डंका ही बजा दिया है। इस उपग्रह में लगे शक्तिशाली कैमरों की सहायता से अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बैठे व्यक्ति की कलाई घड़ी का समय तक आसानी से देखा जा सकता है। इस तरह हम तकनीक के क्षेत्र में निरंतर गतिशील हैं। मालूम है भारती, 2020 को केवल कोविड-19 के लिए नहीं जाना जाएगा, वरन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए भी याद रखा जाएगा। हाँ हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समानता, गुणवत्ता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर आधारित है। इससे छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा को ही बनाया गया है। यह शिक्षा प्रणाली अत्यंत ही व्यवहारिक होने के कारण विश्व स्तर पर सराही गई है। हमारा गणतंत्र हमें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों का ही पालन करना सिखाता है। आप ठीक कहते हैं पिताजी, हमने अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों का पालन किया है, जिस कारण हम सुरक्षित हैं। हाँ भारती, और हमारे आयुर्वेद ने भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया है। इतनी बड़ी आबादी और इतने कम संसाधनों के बावजूद भी हम बहुत बड़े नुकसान से बचे रह सके। हाँ,
और हमने अपने देश के व्यायाम और योग परंपराओं को भी याद रखा, जिसका परिणाम यह है कि हम सब सुरक्षित हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हमारे उत्तरी भारत की छटा तो अत्यंत ही निराली है। उत्तर भारत अपने पहाड़ों, मैदानों, मरुस्थलों, नदियों के लिए जाना जाता है। इस भाग की संस्कृति अत्यंत ही समृद्ध है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल अपने पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अद्वितीय कुंभ मेला विश्व के आकर्षण का केंद्र है। कल कल करती नदियाँ इस इलाके के सौंदर्य में 4 चांद लगा देती हैं। लॉकडाउन में प्रदूषण रहित नदियों और प्राकृतिक स्थलों ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। पिताजी, हमें अपने कोरोना योद्धाओं को भी तो नहीं भूलना चाहिए, जैसे डॉक्टर, पुलिस, सेना, सफाई कर्मचारी, जिनके कारण हम सुरक्षित हैं। और हमारी टीचर्स ने भी तो हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दी। हाँ, घर में रहकर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का वहन पूरी लगन और ईमानदारी से किया है। ऐसे कोरोना योद्धाओं को हम सबका नमन। पिताजी, माताजी, मुझे इस भारत की झांकी को देखकर गर्व महसूस हो रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा हर जन्म इसी मिट्टी में। हाँ, हम भी यही चाहते हैं। एक्शन। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, जिनके अथक प्रयासों से हमें वैक्सीन मिल गई है। इतने कम समय में और इतने कम संसाधनों में भी हमारे वैज्ञानिकों ने किफायती दामों में वैक्सीन का निर्माण कर पूरे विश्व में एक अलग जगाई है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा और सफल टीकाकरण कार्यक्रम भी आरंभ हो गया है, जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। हाँ, फिर हम सामान्य जीवन में लौट आएंगे और पुनः ही स्कूल में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। चलो, तो हम झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाते हैं।
तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, 20 सेकंड तक समय समय पर हाथ धोते रहें। you